ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਸਟੋਰੀ ਰਾਈਟਰ, ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ, ਡਾਇਲੋਗ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਕਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੈਲਕਮ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 1, 2, 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਨੋ ਐਂਟਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਡੀ ਕੂਲ, ਮੁੰਡੇ ਫੂਲ, ਜੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਜਸਟ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਨ ਅਗਰਵਾਲ। ਵਾਹ। ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਦੇ ਸਕੂਗੀ, ਹਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੀਏ, ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार सर जी। और राजन जी कितना सर, ठीक ठाक? हाँ सर, फर्स्ट क्लास। आपसे हिंदी में ही बात करूं, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। वैसे तो आपने आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। ओके। और घर परिवार बढ़िया सब? हाँ जी सर। आपकी थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा माइक आपको पास में लाना पड़ेगा राजन जी। क्या माइक आपको थोड़ा सा आपके नजदीक लाना पड़ेगा। हाँ, अभी आ रही है सर? कम है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है सर? एक अभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है राजन जी आपका हमारे प्रोग्राम रूबरू में। जी सर। बहुत खुशी हुई, बहुत टाइम से हमारी जान पहचान है, फोन पे आपसे बहुत टाइम से बात होती रहती है। तो हमने डिसाइड किया, गगनदीप जी ने और हमने कि सॉरी गगनप्रीत जी ने, मैं गगन ही बोलता हूं तो प्रीत और दीप का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो राजन जी से बहुत प्यार है, तो सोचा कि हमारे प्रोग्राम के जरिए हमारी जो ऑडियंस है उनके रूबरू कराया जाए। राजन जी, मैंने देखा है कि जैसे डायरेक्टर को, एक्टर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है हमारी लाइन में, तो या मुझे ही लग रहा है ये सही है कि राइटर को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती? हाँ, नहीं दी जाती है सर। हमारे बॉलीवुड में या यहाँ पर नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर एक औरत जो है 9 महीने कोख में अपने बच्चे को रखती है और उसको पैदा करती है, तो वो बड़ा होता है, तो सबसे पहले सवाल उससे पूछा जाता है कि अरे तू किसका बेटा है? ये नहीं पूछा जाता है कि उसका माँ कौन है, बाप का नाम पूछा जाता है। तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर डायरेक्टर और एक्टर पूछा जाता है
जी और तो इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। जब पिक्चर बनाने की बात आती है जी तो ये बात होती है कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो जी नंबर 1 होता है। जी और पिक्चर बनते बनते क्या होता है कि वो 20 पे चले जाते जी और नंबर 1 पे एक्टर, डायरेक्टर, बाकी के सब लोग आ जाते। जी तो आप देखे होंगे कुछ पोस्टर्स पे भी कुछ पोस्टर्स में भी राइटर्स के नेम नहीं होते। जैसे सलीम जावेद जी ने उन्होंने फर्स्ट टाइम लड़ना शुरू किया था कि भाई हमको हमारा नाम पोस्टर पे चाहिए, तो स्पेशली उनका नाम लिखाया जाता था। जी तो हाँ, और बहुत से डायरेक्टर्स है जो होता है ना कि डायरेक्टर से पहले प्रोड्यूसर का नाम, फिर म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता है, उसके बाद राइटर का नाम होता है। बहुत जी से लोगों ने नाम दिया है, और बहुत से लोग टेक्नीशियन पिक्चरों में होता है कि जब टाइटल एक्टर्स के नाम खत्म आते हैं, स्टोरी राइटर्स का नाम आ जाता है, और फिर बाद में सारे टेक्नीशियंस के नाम होते हैं, जबकि लास्ट 3 में राइटर का नाम आना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी सबसे मैं तो ये सोचता हूँ, चलो प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, उसका रिस्क रहता है, फिर भी जो स्टार्टिंग जहाँ से होती है, एक विजन है, एक थॉट आता है दिमाग में, वो राइटर के दिमाग में आता है। तो अगर जो रिगार्ड है, एक रिस्पेक्ट है, वो स्क्रीन पे राइटर का नाम सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि ट्रेंड बना हुआ है, वो वैसे ही चल रहा है उसको। हाँ, फॉरेन में जैसे बॉलीवुड में होता ऐसा है कि जो राइटर की फीस होती है वही डायरेक्टर की फीस होती है। जी जो और जैसे अभी फिल्मों में इतना नहीं, अभी टीवी सीरियल्स में और बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं राइटर्स, क्योंकि वहां पर हर एपिसोड में आपको एक नया ट्विस्ट देना है, जी नई चीज देनी है, क्योंकि हर एपिसोड एक तरह का हर एक इंटरवल हो गया आपके लिए। जी तो वो बहुत होता है कि हाँ, लिखना है, वर्कआउट करना है स्क्रिप्ट पे। बेसिकली लोग काम करना ही नहीं चाहते। जी तो आपने जैसे हिंदी साउथ का सिनेमा है, तो उसमें आप क्या फर्क समझते हैं? बहुत फर्क है सर। साउथ में वो लोग नए कॉन्सेप्ट बहुत ढूंढते हैं और उसके ऊपर करना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंट। पर हाँ, पर अभी वहाँ की पिक्चरों के रीमेक यहाँ पर बहुत बनते हैं। साउथ की पिक्चरों के जी बहुत रीमेक बनते हैं। जी और मैंने अभी एक पिक्चर देखी थी साउथ की, मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत अभी मैंने टिप्स कंपनी के साथ वो पिक्चर का रीमेक कर रहा हूँ। जी वो पिक्चर उसने 1.25 करोड़ में बनाई है वहां पर। वो जी पिक्चर का थॉट ही ऐसा है कि उसने वो पिक्चर का करीबन 25 करोड़ का बिजनेस हुआ। जी तो वो थॉट इम्पोर्टेंस होता है, और वो लोग फैमिली वैल्यूज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, भगवान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जी वहां पर हीरोइज्म होता है। जी वहां पर ये नहीं देखते कि यार कि एक नया लड़का है तो 4 जनों को नहीं मारेगा। जी वहां पर है कि हमारा हीरो हीरो है। जी हमारा हीरो, हर हीरो सलमान खान है, चाहे वो नया लड़का हो तो धनुष को देख लो या किसी को भी देख लो। जी तो उनकी नजर में हमारा पिक्चर का हीरो है। वो जी एक्टर के हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं लिखते, जी स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर को काम करना है। जी तो सर, आपने जैसे पंजाबी में काफी सारा काम किया है, चाहे वो हम्म, जट एयरवेज हो, जस्ट यू एंड मी हो, डैडी कूल मुंडे कूल की सीरीज आप कर रहे हो, फर्स्ट पार्ट भी आपने हम्म, किया था, सेकंड भी कर रहे हो, और बहुत सारा आपने कभी पीछे जी पंजाबी पे आपका आ रहा था, सीरियल आ रहा था मामा ठंडिया शामा। तो हम्म। पहले मतलब जो सीरियल था वो आप लिख रहे थे, क्या अभी ज्यादा व्यस्त हो गए कि बॉम्बे में थोड़ा ही सा मतलब? व्यस्त भी हो गया, और फिर वो बम्बई पंजाब से बहुत कोविड था। राजन जी ने ये सोचे थे हम लोग कि भाई हर एक 15 दिन में जो एक मैं ट्रिप कर लूं पंजाब में। जी चैनल के साथ मीटिंग्स होती है 15-15 एपिसोड की। जी वो हो नहीं पाया कोविड की वजह से। जी तो फिर मैंने बोला कि स्टोरी मैं कर लूंगा। स्टोरी मैंने लिख के दे दी पूरी, और जी फिर वहां से स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखना शुरू कर दिया राइटरों ने। जी हम्म। तो वेलकम सीरीज जैसे आ रही है, पहले वेलकम, वेलकम टू, अभी हम्म। वेलकम 3 आ रही है, तो उस पे भी कुछ काम चल रहा है अभी? हाँ, वन में मैं नहीं था इन्वॉल्वमेंट। वेलकम 2 में मैं था। और अभी वेलकम 3 अनीस अहमद खान जी डायरेक्ट कर रहे हैं।
जी और ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ, स्क्रिप्ट भी फाइनल हो गई थी। दो तीन एक्टर्स को भी नरेशन हो गया था सब कुछ। जी और सब डेट वेट फाइनल हो रही थी। जी और इतने में सब कोविड हो गया, तो हर प्रोजेक्ट जो है आपको अब 2 साल पीछे ही चले गए, जी ऐसा हो गया। तो जी अभी जैसे ही अभी मेरे ख्याल से अगले महीने से आमिर खान जी की एक पिक्चर चल रही है अभी, जी हीरोपंती 2। जी। तो वो खत्म होते ही हम लोग वेलकम बैक में वेलकम 3 पे लग जाएंगे। जो पहले की सीरीज थी, वेलकम हो, वेलकम टू हो, वो अनीश जी ने डायरेक्ट की, जी तो जी जी। उनके साथ भी फिर आगे कुछ काम कर रहे हैं आप? हाँ, अनीश जी ने अभी, अनीश जी ने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है मेरा। जी हम लोग स्टोरी मेरी है, अनीश जी काफी काम कर रहे हैं हम लोग उस पे। जी हाँ, अनीश जी ने काफी दिनों से वो सब्जेक्ट लेके रखा है। जी। तो एक सुनने में आया था कि अटल जी की बायोपिक, हम्म। हाँ, वो भी, उस पे भी काम चल रहा है। हाँ सर, ये दिल्ली के जयपुर के एक प्रोड्यूसर है मिस्टर अमित जोशी। जी अ, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी और मिस्टर माइक श्रीवास्तव है, दिल्ली जी के एक डायरेक्टर है, डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर है, दूरदर्शन के डायरेक्टर है। जी वो डायरेक्ट कर रहे हैं। जी तो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरा जो थप्पा लगा है कि यार राजन अग्रवाल तो कॉमेडी लिखता है, कॉमेडी लिखता है। जी 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 तो होता है ना कि, तो मेरी डायरेक्टर से मुलाकात हुई, तब मुझे पता चला कि यार अटल जी की पिक्चर करना चाहते हैं। तो मैं बोला सर मैं लिखूंगा। जी तो बोले अरे कॉमेडी लिखता है, ऐसा कैसा होगा, तू कैसे कर पाएगा। जी मैं बोला सर मेरे को 10 दिन का टाइम दो, मैं कुछ करके आता हूँ वर्कआउट। जी तो फिर मैंने रिसर्च करके कुछ सीन्स बनाए, मैंने डायरेक्टर को सुनाया। जी तो फिर वो ऐसा रहा कि कुछ दिन तक उनके टीम में बड़ा ही टेंशन चल गया था जी कि यार नहीं नहीं नहीं, राजन अग्रवाल नहीं लिखेगा, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो कॉमेडी लिखता है। क्योंकि हाँ, तो फिर बाद में डायरेक्टर ने जिद कर ली थी कि भाई नहीं नहीं, राजन ही लिखेगा। मेरे को जी। पूरा भरोसा है। फिर हमने बहुत रिसर्च करके 1 साल लग गया हमको पूरा लिखने में। तो पीछे मैंने एक फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट काफी देखी, जो राज शेंडाले की है, जनहित में जारी। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं अभी यहाँ? जनित में जारी है ना सर, राज जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका ही सब उमंग, आइडिया है। हाँ, उमंग कुमार जी शायद डायरेक्ट कर रहे हैं उसको। उमंग जी डायरेक्ट कर रहे हैं, और उसका स्क्रीन प्ले मैंने ही किया है। राज जी जो है उनका तो कॉमेडी में बड़े ही मतलब मास्टर है। उनकी, उनके साथ 2-3 सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। जी हमने वेलकम बैक के भी डायलॉग उन्होंने ही लिए। और कॉमेडी सर्कस ये तो सब जानते ही है। जनहित में जारी बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है। और बेसिकली उस पिक्चर के जरिए हम बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं राज जी। जी कॉमेडी पिक्चर है। जी कॉमेडी पिक्चर के अलावा भी उस पिक्चर में बहुत कुछ है कि आप ट्विस्ट टर्न्स बहुत अच्छे हैं, इमोशंस बहुत अच्छा है, कॉमेडी अच्छी है। पर एक लड़की ऐसी पिक्चर फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है मुझे करेगी, जी। हीरोइन। नाम से ही लग रहा है उसका अलग कंटेंट हाँ जो अलग रहेगा कुछ ना कुछ। जी जी। तो अपना राजन जी, पंजाबी का भी जैसे आप एज ए राइटर तो काफी काम किया है। राजन बत्रा जी की बत्रा शोबिस का एक प्रोजेक्ट किया पीछे, वो भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कुत्ते फेल। वो आपने एज ए हाँ डायरेक्टर, डेब्यू डायरेक्टर जी जी की, जी जी। उसके बारे में कुछ बताइए। सर राजन जी ने कुत्ते फेल बहुत दिनों से वो सब्जेक्ट रोक के रखा था जी कि राजन अपन करते हैं, मैं ही डायरेक्ट करने वाला था। जी और फिर बाद में ऐसा हुआ कि राजन जी की सीरियल जो थी वो 20 दिन 25 दिन लेट हो गई चालू। जी तो राजन जी ने बोला क्या करे। तो मैं बोला सर वो सब्जेक्ट कर लेते हैं 20 दिन, जी क्योंकि उनकी पूरी यूनिट रेडी थी। जी तो फिर मेरे को राजन जी ने बोला आ जा तू। जी और फिर हमने सोचा कि अब कि बड़े आर्टिस्ट को, हर आर्टिस्ट बिजी है चाहे वो कोई भी हो दो। जी तो हमने सोचा नए लड़कों के साथ लेकर एक पिक्चर बनाते, देखते क्या होता है। जी और फिर हमने पूरा बना के फटाफट प्लान कर दिया।
एक हफ्ते के अंदर पूरा प्लान बन गया। जी। हम्म। जैसे अभी कोविड चल रहा है तो थिएटर बंद थे, फिल्में रिलीज नहीं हो रही थी थिएटर में, चाहे वो हिंदी है पंजाबी है। तो इसमें एक चीज बहुत ज्यादा बूम आया जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का, चल तो पहले भी रहा था, लेकिन सिनेमास बंद होने की वजह से मतलब लोग जो थे इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो ओटीटी पे बहुत सारे लोगों ने नए नए जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा था, वो हॉलीवुड का हो चाहे बॉलीवुड का हो, वेब हाँ। सीरीज, तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? सर अगर मैं मानता हूँ कोविड के अंदर अगर ओटीटी नहीं होता, जी। ओटीटी नहीं होता ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते। जी। इंडस्ट्री एकदम मतलब मेरे हिसाब से बहुत कुछ खत्म हो जाता है एक तरह का, बराबर। क्योंकि जितनी पिक्चरें बनी हुई थी एक एक कर रिलीज हो गई। जी। और पहले क्या था, छोटे प्रोड्यूसर्स बहुत छोटी छोटी फिल्में बनाते थे। जी। वो कॉर्पोरेट आने की वजह से वो लोग, उनकी दुकानें बंद हो गई। जी। तो ओटीटी आने से जो छोटे छोटे ओटी प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं तो उनको वर्क मिल रहा है। जी। और बड़ी बड़ी पिक्चरों के जो प्रोड्यूसर्स है, मतलब जो आज एक्टर्स लोग 50 करोड़ 100 करोड़ मांग रहे हैं, वो ओटीटी की और सैटेलाइट की वजह से ही मांग रहे हैं। और ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनका नाम ले लेना चाहूंगा, जिनको कोई एक जमाने में स्टार थे और अभी उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। बराबर। हाँ, बॉलीवुड में। तो फिर वो ओटीटी की वजह से उनकी सबकी दुकानें चल गई जी। और बहुत सारा काम मिल गया। एक आदमी को उम्मीद होती कि यार चलो यार मेरी पिक्चर थिएटर में नहीं चलेगी, पर मेरे को ओटीटी से मेरा पैसा निकल कर आ जाएगा। जी। और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जो होते हैं या बड़ी पिक्चरों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, छोटी पिक्चरों को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। जी। पर छोटी पिक्चरों को ओटीटी की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ओटीटी वाले कंटेंट देखते हैं कि भाई यार अच्छा कंटेंट हमको मिल जाए तो हम, हाँ, ओटीटी तो मैं तो बोलता हूँ कि एक संजीवनी बनकर आया है कोविड में। सही है, बहुत बहुत अच्छा हुआ है मतलब इसमें। हाँ। तो राजन जी, बॉलीवुड में आपने काफी सारा काम किया, बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया आपने, हाँ तो मतलब पंजाबी फिल्मों में कैसे आना हुआ? सर, मेरे एक फ्रेंड थे इमरान खालिद, उन्होंने वो राजन बत्रा जी से मेरे को पहली बार मिलाया था। जी। तो फिर राजन जी ने बोला अच्छा कुछ पंजाबी के लिए है तो सुनाओ। तो उस वक्त राजन जी और विवेक ओरी जी का बहुत पंजाब में नाम था। तो उन्होंने उनके साथ तो मेरे को काम करने का नहीं मिला, पर राजन जी ने मेरे को जैसे रूबी जी से मिलाया, समरजीत जी से मिलाया, हरजीत रिंकी जी से मिलाया, अरे मेरा दोस्त है उनसे मिल लो। जी। तो फिर वो पीछे हरजीत रिंकी जी की जेट एयरवेज लिखी। आपने? हाँ, समरजीत जी की जो है स्टडी फुल मुंडे फुल लिखी। जी। जी। फिर हैरी जी की भी एक पिक्चर लिखी थी मैंने, हैप्पी गो लकी। हैप्पी गो लकी। जी। हैप्पी गो लकी। जी। और हैरी जी एक ऐसे डायरेक्टर मेरे को प्रोड्यूसर मिले जी। जो मेरी लेने के लिए जब उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस बुलाया, जी। तो वो पहले ऐसे बंदे थे जो खड़े होके मुझे हाथ में चेक दिया और बोले थैंक्स राजन, तुमने मुझे एक बहुत अच्छी कहानी दी। जी। अ, तो एक जब चीज उनकी राजन जी, मैंने आपके बहुत टाइम से आपके साथ हम मतलब रिलेशन में है, दोस्ती में है, तो मैंने एक चीज देखी है आज पंजाब में, मैं तो बॉलीवुड का मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है, तो मैं पंजाबी की बात करूंगा। जैसे एक फिल्म हिट होती है तो यहाँ पे सुनने में आता है कि राइटर ने अपनी फीस बढ़ा दी यहाँ पे, मतलब कि एक मैं एवरेज बताऊं तो 70 लाख 80 लाख या मतलब 40-50 के आसपास तो मतलब हो ही जाता है। तो आपने, मैंने बहुत बार आपसे जैसे स्टोरी के लिए सब्जेक्ट के लिए बात हुई, तो आपका एक जेन्युइन प्राइस रहता है, एक फीस है जो बड़ी चल रहा है। आवाज आ रही? हाँ, आ रही।
तो आपके दिमाग में नहीं कभी आया, या वो मतलब न्यू कमर्स रहते हैं उनको होता है कि मतलब अभी मैं बड़ा स्टार बन गया हूँ, या आप कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, बॉलीवुड भी कर रहे हैं, साउथ का मैं भी कर रहे नहीं नहीं, क्या होता है कि सर देखिए, हर एक पिक्चर का एक बजट होता है मेरे जी हिसाब से। जी अगर मैं ये बोलूंगा कि यार नहीं, मैं तुषार कपूर की पिक्चर का भी बजट वही लूंगा और सलमान खान की भी पिक्चर का बजट वो लूंगा, तो कभी काम वर्कआउट नहीं हो सकता। जी तो हर एक एक्टर, हर एक प्रोजेक्ट की एक बड़ा प्रोजेक्ट कितने का बन रहा है, जी उसके हिसाब से राइटर का बजट, हर हर टेक्नीशियन का बजट होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। तभी तभी जाके पिक्चर बनकर रिलीज हो पाती है। जी। हाँ। तो राजन जी, जैसे बॉलीवुड और पंजाबी का तो मेरे को मालूम है, आपने और कौन कौन सी लैंग्वेज में फिल्में की? सर बेसिकली क्या है, मैं हैदराबाद से हूँ। जी, मैं तो आने मैं वाला ही था उस बेसिकली, बात पे भी। मैं उस हाँ बात हाँ, मैंने कहा चलो स्टेप बाय स्टेप पूछता हूँ। तो तो बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, पर मेरी पैदाइशी हैदराबाद से है। जी तो मुझे तेलुगु आती है, जी तो मैंने तेलुगु सीरियल्स लिखे हैं। उसके अलावा मैं एक डायरेक्टर है पूरी जगन्नाथ, बहुत बड़े जी फेमस डायरेक्टर है, उनके साथ डायरेक्शन में रहा हूँ। जी तमिल पिक्चर लिखी है मैंने, एक देवी 2 बोलकर आई थी, उसकी स्टोरी मेरी थी, जिसमें प्रभुदेवा और तमन्ना भाटिया थी। जी जी और गुजराती सीरियल लिखा हूँ, भोजपुरी फिल्म्स लिखा हूँ 3-4, जी पंजाबी हो गई, जी और कन्नड़ सीरियल लिखा हूँ। जी तो एक 6-7 लैंग्वेज में मैंने काम किया है। जी। ग्रेट। सर जैसे मैं अभी उस पे चेक करता रहता हूँ, तो उस पे आपका जब हम गूगल पे सर्च करते हैं आपका नाम, तो प्यार हो तो होना ही था, और ऐसी बड़ी फिल्में हैं उसमें आपका जैसे स्क्रीन प्ले राइटर हम्म। नाम आता है। सर मैं देखिए क्या होता है, जब एक मैं बम्बई में नया नया आया था, जी तो जब तक आप स्क्रीन प्ले एक ऐसी चीज है, स्क्रिप्ट कि एक तो भगवान की देन होती है, जी ये गॉड गिफ्ट होता है। पर अनीस बज्मी जी के साथ मैं जुड़ गया था, जी तो उनके साथ मैंने 4-5 पिक्चरें एज ए एसिस्टेंट के तौर पे किया। जी और मैं अगर वो नहीं करता उस वक्त, तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होता, जी क्योंकि जो भी कुछ सीखा हूँ मैंने, वो अनीस बज्मी जी के साथ ही रहे। हम्म। काम करने का तरीका है, से करते हैं, जी तो वो सब मैंने उनसे सीखा है। जी फिर उन्होंने मुझे नो एंट्री में अपना क्रेडिट दिया, अनीस जी ने। फिर अनीस जी ने ही मुझे नो प्रॉब्लम, रेडी, थैंक यू में हम लोग साथ में मिलकर फिल्म लिखे। जी तो बहुत ऐसे कम डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स, बड़े राइटर्स होते हैं, जो अपने असिस्टेंट को अपने साथ में को राइटर बनाते। जी। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं राजन जी। वैसे तो हर इंटरव्यू में वो स्टार्टिंग में रहता है, तो हमारा क्या है कि जैसे थोड़ा नेचुरल रहता है, बात करते करते जो दिमाग में आ रहा है, जैसे हम फोन पे बात नहीं नहीं, करते वो हैं। सही है, राइटर है। हाँ, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। सर मैं बेसिकली हैदराबाद में, मेरे फादर, मम्मी पापा तो अभी नहीं रहे, हम 4 भाई है, जी और मैं ही एक फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। जी मेरी मम्मी बम्बई की थी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत आसान हो गया था कि मैं अपने मामा और मौसी के पास आकर ठहरा। जी और अभी 3 भाई वहीं रहते हैं, पूरे ज्यादातर रिश्तेदार हैदराबाद और बम्बई में रहते हैं। मम्मी की साइड के सारे जो लोग हैं, जी चाहे वो मामा हो, मौसी हो, सब लोग फैमिली के, मम्मी की साइड सब बम्बई में ही रहते हैं। जी और तीनों भाई जो है, अभी उनका बिजनेस है हैदराबाद में, जी। वहां पर रहते हैं। तो फिल्मों में आने का, जैसे आप मुंबई वहां से आते थे अपने मामा जी के घर पे, हम्म। अपने नाना नानी के पास, यहाँ आने के बाद इसका जैसे चस्का चस्का लगा बोलूंगा, या मतलब पहले से कोई स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट था कि मतलब इस लाइन में जाना है, या एकदम जी से? हाँ, नहीं नहीं, एकदम से नहीं था। स्कूल में कुछ नाटक लिखना था, तो फिर वो मैंने लिखा था, तो वहां से मुझे लगा कि यार करना चाहिए। जी सब फ्रेंड्स ने बोला, और फिर मैं फिल्में बहुत देखता था। जी तो मेरे को ये था कि अरे ये कहानी ऐसा क्यों नहीं, ये कहानी ऐसा क्यों नहीं हो गई। जी
तो फिर मैंने लिखना कुछ कहानियां लिख ली थी जी और ग्रेट। फिर मैं बम्बई आया। बम्बई आने के बाद जब उस वक्त क्या ना था, कोई चैनल्स नहीं थे जब 92 में आया था। जी तो मैं कोई चैनल्स नहीं थे और फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करना बहुत मुश्किल था। प्राइवेट चैनल नहीं थे, दूरदर्शन हाँ, तो था। प्राइवेट चैनल दूरदर्शन तो था। जी दूरदर्शन में भी एंट्री बहुत मुश्किल से होती थी। बहुत मुश्किल। हाँ, तो वो पर फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत मुश्किल थी। जी आज तो 100 चैनल हो गए तो लोगों को काम मिलना आसान हो गया जिनको काम आता है। पर उस टाइम तो बहुत मुश्किल थी। हम्म। तो अरे फिर जी बाद कभी में कैसा। जी सर, जैसे आपने बोला कि आपने डिफरेंट कैटेगरी की फिल्म्स लिखी है ना, तो आप मैं आइडिया कहाँ से आता है और कैसे लैंड करते हैं? आइडिया कहाँ से आता है सर? कोई चीज देखते हैं, कुछ क्लिक हो जाता है या कुछ बिल्कुल। अचानक से आ जाता है। जी अरे ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, जैसे कभी कुछ पेपर में पढ़ लिया, जी हम्म। कुछ घटना घटी कहीं। जी हम्म, लेकिन आपकी बिल्कुल हटके होती है मूवीज ना, ऐसा नहीं कह सकते कि अ, ये कंसेप्ट यहाँ से लिया है। ये आपकी वाकई में बहुत एप्रिशिएबल है बात कि आपका एक अलग से कैटेगरी बन चुकी है कि ये राजन जी का है और अपनी फिल्म से भी दूसरी फिल्म मैच नहीं करती है आपकी। जी इवन वेलकम भी देखें तो फर्स्ट वेलकम सेकंड वेलकम से हटके है। हाँ वो है। सर वेलकम बैक जो है, अनीस जी ने हम लोगों ने बहुत मेहनत की स्क्रिप्ट पे, क्योंकि मैं अनीस जी के साथ रहा हूँ। तो वो उन्होंने ये देखा है कि उन्होंने अपने 4-5 सब्जेक्ट लिखे हुए उठा के साइड में रख दिए ओके। कि बोले नहीं यार अभी इसके ऊपर पिक्चर नहीं बन सकती। जी क्योंकि वो आदमी अपने आप से ईमानदार होना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। जी राजन जी यार नहीं यार। जी हाँ बोलिए सर। सॉरी, कभी ऐसा रहा कि आपने कोई स्टोरी किसी प्रोड्यूसर को या किसी डायरेक्टर को नरेट की हो, तो बाद में पता चला हो कि यार उस पे उसने फिल्म छाप दी। नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जी और आजकल तो सबको पता है कि राइटर एसोसिएशन है, रजिस्टर हो जाती है। जी और कोई प्रोड्यूसर तो ऐसा रिस्क नहीं करेगा, जी क्योंकि सबको पता है। क्योंकि आज एक पिक्चर भी बनाने के लिए, चाहे वो छोटी पिक्चर हो चाहे बड़ी पिक्चर हो, वो करोड़ों में ही बजट चला जाता है। जी तो वो प्रोड्यूसर्स हाँ पैसा कम देते होंगे, पर ये सोचते कि चलो यार हम कोई भी राइटर से स्क्रिप्ट ले ले, जी ऐसे कानूनी तौर पे ले ले, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। नहीं, जैसे यहाँ से डायरेक्टर प्रोड्यूसर बॉम्बे जाते हैं, वहां से कंसेप्ट सुना किसी से, ठीक है, स्टोरी सुनी तो यहाँ पे आके छाप दी। क्योंकि पीछे मैंने एक ऐसा किस्सा सुना हम्म, पंजाबी में कि बॉम्बे में जो वो बड़े किसी स्टार के साथ फिल्म स्टार्ट होने वाली थी, तो कोई बंदा साथ में उनके जैसे असिस्ट कर रहा था राइटर को, तो उसने यहाँ पे आके सुनाई और बड़े लेवल पे हिट भी हो गई। तो फिर उसने यहाँ पे लोगों को अप्रोच किया, तो तब तक तो वो सब कुछ हो चुका था, तब तक तो सैटेलाइट भी दिख चुके थे। तो ऐसा एक्सपीरियंस होता रहता है। तो मैंने कहा कई बार सब राइटर्स के साथ होता है, किसी के साथ स्ट्रगल टाइम पे हो जाता है, किसी के साथ बाद में भी हो जाता है, क्योंकि वहां से अप्रोच नहीं रहती ना पंजाबी की, मतलब रीच हाँ। हो रहा है, ग्रो तो हो रहा है, लेकिन अब तक इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि बॉम्बे में पता चले कि ये मतलब बिग हिट है प्रोजेक्ट। नहीं सर, मेरे साथ कभी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। जी वहां पर मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने हैं, देखे हैं जी कि और बहुत से लोगों को ऐसा भी कभी कभी लगता है कि यार ये मेरा आइडिया है, जी पर बिना मतलब की भी कोई बहुत से लोग केस कर देते हैं। जी और बहुत सी चीजें हुई है, मेरे एक दोस्त के साथ भी हुई थी। उसने किसी को स्टोरी सुनाई थी और उसने अ, वो उसके ऊपर जाकर उसने फिल्म बना ली थी। फिर बाद में उसने केस किया और राइटर एसोसिएशन ने इंसाफ दिलाया अब उसको। जी जी पर मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप आज नहीं तो कल तो पकड़े ही जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। राजन जी, जैसे नए राइटर्स हैं, हम भी लिखने के लिए आपकी गाइडेंस चाहते हैं ना, तो क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से लिखना चाहिए और कहाँ से आइडिया लेना चाहिए?
सर देखो कभी भी मैं ये समझता हूँ कि सबको, अगर मैं बताऊं कि अगर शोले पिक्चर, हम्म तो अगर शोले पिक्चर को इंसान लिखना है तो कैसे लिखा होगा? तो शोले पिक्चर जो होता है, पहले एक आइडिया होता है कि भाई हाँ, एक ठाकुर ने के हाथ काट दिए गब्बर ने, और अब उसको बदला लेना है। जी तो उसको बदला लेना है तो उसने दो दो जनों को चुना, जय और वीरू को। ये आपकी पिक्चर का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एक दुनिया होती है कि कहाँ आप उस दुनिया को कहाँ पर करोगे, रामगढ़। तो उसने एक शहर ढूंढा। जी फिर सबसे आज शोले के कैरेक्टर्स लोगों को एक एक करके याद है। आप बाकी के दूसरे भी, आप किसी भी कॉमेडियन के नाम पूछ लो, आपको याद नहीं है, पर शोले पिक्चर के सब कैरेक्टर्स याद है, क्योंकि सब लोगों ने सब कैरेक्टरेशन पे वर्कआउट किया है। जी जब तक आप हीरो का कैरेक्टर या कॉमेडियंस के जो भी विलन का भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, जी तो वो आपको पिक्चर भी याद रहेगी। जी और स्क्रीन प्ले बहुत से लोग बहुत आसान समझते हैं। एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला था, यार नहीं, मैं यहाँ से मद्रास जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है, तो मेरा सेकंड हाफ हो जाता है। जी तो मैं ये समझता हूँ कि स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो एक एक साल होती है। हमने नो एंट्री लिखी थी, नो एंट्री अनिल जी, एक तमिल पिक्चर की रीमेक थी। वो तमिल पिक्चर की रीमेक लिखने में अनिल जी ने 1 साल लगाया था, जबकि उस टाइम पे सारे एक्टर्स के डेट्स थे कि बोनी जी अनिल जी को फोर्स कर रहे थे कि यार सब रेडी है, पर अनिल जी ने बोला जब तक मेरी स्क्रिप्ट रेडी नहीं होगी मैं शूटिंग पे नहीं जाऊंगा। जी तो स्क्रिप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खास करके स्क्रीन प्ले। तो राजन जी, बहुत सारे डायरेक्टर के साथ काम किया हमने, तो सबसे ज्यादा कई बार होता है ना कि किसी बंदे के साथ जुड़ाव हो जाता है कि यहाँ किसी बंदे के साथ काम करना अच्छा लगता है। सर देखिए, अनिल जी के साथ काफी काम किया। जी उनके साथ तो मैं ये बोलूंगा कि उनके साथ स्क्रिप्टिंग में जब बैठते हैं तो हमारे झगड़े भी हो जाते जी हैं। हाँ मतलब और वो एकदम जैसे कि होता है ना, बहुत से लोगों में ईगो होता है, जी डायरेक्टर नहीं, मैंने जो सोचा राइट है। जी और एक डायरेक्टर ये होता है कि वो अपना सोचा हुआ भी बोल दे। जब मैं कुछ बोलता हूँ या कोई दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं ये नहीं सर ये है, तो वो दंदनी के हाथ ऊपर कर देता है, यू आर राइट। जी और वही डायरेक्टर सक्सेस होता है। जी और मैंने अनिल शर्मा जी के साथ, जो गदर के डायरेक्टर है अनिल शर्मा जी के साथ, जी जी पे पिक्चर पे काम कर रहे हैं। जी मैं नीरज पाठक जी जो डायरेक्टर है, जी हम लोगों ने नीरज अनिल शर्मा जी के लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जी तो अनिल जी का जो एनर्जी है काम करने का स्क्रिप्ट पे, जी वो इस एज में भी मतलब धन देने की, सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, उठो हम लोग खंडाला गए लिखने के लिए। जी तो वो एनर्जी जो अनिल जी में है आज भी वो है। जी। तो सर, जो रेस मूवी या बाजीगर हो या बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, हमराज, अब्बास मस्तान, बहुत बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का, तो पीछे सुना था कि आप उनके साथ भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ सर, उन्होंने मेरा एक कॉमेडी सब्जेक्ट फाइनल किया है। हम लोगों ने काफी 7-8 महीने काम किया अब्बास जी के साथ। जी और वो बहुत ही कूल बंदे हैं। बिल्कुल। मतलब उनके साथ करने का एक मतलब, दूसरे राइटर और डायरेक्टरों के साथ काम करना और अफसान जी के साथ काम करना, जी तो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे होता है ना कि 3 भाई है बेसिकली, जो उनके हुसैन भाई एडिटर भाई है, जी तीनों भाई की सोच एक है। जी अगर मैं समझो एक भाई बाथरूम गया हुआ है, मैं कुछ सीन सुनाऊं, तो जो भाई का जो रिएक्शन रहेगा, जी जब दूसरा भाई भी आके बैठेगा ना सर, तो जी भी उनका वही रिएक्शन रहेगा। जी जी ग्रेट। मतलब वो तीनों भाइयों की जो सोच है, जी वो बहुत ही, एक रहता है ना कि दो भाइयों की अलग अलग सोच होती है हर चीज में, पर जी उनकी नहीं है। और जी वो बहुत कूल है, कभी उनको गुस्सा नहीं आता है, नहीं जी राजन ये समझ में नहीं आया, नहीं ये अच्छा है ये बुरा है।
जी वो बहुत ही कूल तरीके से चीजों को करते हैं जी और उनका काम करने का स्टाइल ही अपना अलग है। जी तो ये कॉमेडी सब्जेक्ट अभी किया है, अभी कोई एक्टर को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, देखो। जी राजन जी, जैसे ये तो हो गई काम की बात कि किन किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, लेकिन इस फील्ड में कई बार तो आपका जैकपॉट लगता है या लॉटरी बोलो। कुछ वैसे वो कुछ बंदे होते हैं कि आए बॉम्बे आए तो साथ के साथ में काम मिल गए, लेकिन कुछ हैं कि वो बहुत सालों 20 साल 30 साल से मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिलता। तो कितना मुश्किल था इस फील्ड में थोड़ा लिंक बनाना या काम करना, या कोई पहचान के लोग थे? सर जब मैं आया था तो पहले भी मैंने कहा कि इतने सारे चैनल्स नहीं थे, जी खाली दूरदर्शन था और जी टीवी स्टार्टिंग हुआ था। जी तो मेरी किस्मत ही अच्छी रही कि मुझे अनीस जी से मुलाकात हो गई जी और उनके साथ मैं जुड़ गया। जी और उस वक्त से मैं थोड़ा बहुत सीरियल्स भी लिखने लग गया था, जी तो सरवाइव हो गया था। जी पर बहुत से लोग जो मैंने देखा कि बहुत से लोगों में बहुत टैलेंट होता है पर उनको वो ब्रेक नहीं मिलता है। खास जी करके मैंने कुछ डायरेक्टर्स को भी देखा है जो बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स होते हैं जी और उनको ब्रेक नहीं मिला है। जी खुश सुनाई दे रहा है किस्मत ना सर? हैं आप, आपको हाँ अच्छे लोग मिले, जिन जिन लोगों से आपने काम किया सबके साथ आपकी आपकी एक बॉन्डिंग है। तो कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको हो कि मैं ये बनाना चाहता था किसी न किसी डायरेक्टर के साथ, लेकिन वो अभी हो नहीं पाया हो? सर, मेरा था कि डायरेक्टर में मैं अब्बास सुल्तान जी के साथ काम करना चाहता था जी और वो मेरा हो गया। जी और मैं बेसिकली अभी डायरेक्शन में बहुत थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। जी तो एक दो प्रोजेक्ट है, मैंने इस कोविड में दो तीन सब्जेक्ट पे काम किया हूँ जी जो मैं एज ए डायरेक्टर करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ एक दो प्रोड्यूसर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जी तो बहुत जल्दी जो है मैं गुड न्यूज आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू। तो जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा था, तो बॉम्बे जब हम यहाँ पे पोस्ट के लिए आते हैं, मतलब साउंड इफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर ये सब चीजें करने के लिए आते हैं, तो देखा बड़ी भागम भाग रहती है यहाँ पे। तो मतलब हमारी लाइन का तो ये देखा कि मतलब सुबह से जगे हैं, रात के 12 2 4, मतलब लास्ट होता है कि अभी 4 बज गए यार अभी सो जाओ। ठीक है, मतलब इतना शेड्यूल बिजी होने के बाद एकदम से कोविड आता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो सब लोग एकदम से टेंशन में आ गए थे। तो कभी दिमाग पे ऐसा हुआ कि यार एकदम से बंद हो गए अंदर, अभी सब लिंक जो है मतलब फोन पे थे, मिल नहीं पा रहे, क्योंकि हमारी तो लाइन ऐसी है जैसे पेट में बोलते हैं गुबार आ जाता है कि बातें नहीं करो, मिलो नहीं सबसे। तो मतलब कैसा जब सरवाइव था तो घर पे रह के कैसा एक्सपीरियंस था? सर क्या है, मतलब आदमी तब नहीं निकले तो एक पागल सा हो ही जाता है। जी और सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में लॉक कर दिया था, कोई बाहर नहीं निकलेगा, ये नहीं करेगा। जी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे। जी तो मतलब सोने खाने पीने का भी सब शेड्यूल बदल गया था। जी पर ये था कि कुछ वर्क थे लोगों के साथ, कुछ जी प्रोड्यूसर्स ये चाहते थे कि हम लोग कोविड में कुछ स्क्रिप्ट तैयार करके रख ले ताकि जैसे ही खुले कुछ काम करे। जी तो काम चल रहा था, ऐसा नहीं था कि राइटरों के लिए प्रोड्यूसर थे, कुछ डायरेक्टर थे। मैं बीच में उस कोविड में समीप खान जी के साथ एक वेब सीरीज, हाँ वो भी देखा। जी पंजाबी वेब सीरीज है, जी वो हम जी लोगों ने काफी काम किया, जो अभी 9 10 एपिसोड की शूटिंग भी हो गई है, जिसमें जसविंदर भल्ला भी है, जी जी भी है। तो हमने मतलब इतना इतना मेरे को वो नहीं हुआ कि यार मैं एकदम ही खाली बैठा हूँ। कि जी जैसे अभी एडिटर होता है या कैमरामैन होता है, तो उसके लिए क्या होता हो जाता था कि मतलब एकदम कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे। जी मैं तो कम से कम राइटर्स लोग तो पता नहीं, बहुत से राइटर्स लोग तो मैंने जितने भी फ्रेंड्स है बोलते नहीं हम लोगों ने काम किया है। तो जी एक राइटर के लिए ये अच्छा रहा कि हम लोग काम करते रहे, तो उतना नहीं तो हम तो मेंटली हो जाते। जी।
तो राजन जी, जैसे आपकी फिल्मों में बड़ी मस्ती होती है, बड़ा कलरफुल माहौल होता है, मतलब आप अपनी लाइफ में कितने हाँ रिजर्व हैं, या मतलब नहीं, थोड़ा थोड़ा तो कभी कैसा कभी नेचर है आपका? नहीं, थोड़ा जल्दी गुस्सा तो आता है, ऐसा जी। नहीं है, पर मैं कॉमेडी पिक्चर में भगवान की दया से बहुत अच्छा आता है, पर जी मैं जो है ना प्रिफर करता हूँ कि मेरे को कोई एक्शन है थ्रिलर पिक्चर लिखूं, जी और एक दो थ्रिलर पिक्चर लिख में, जी और मैं जो पिक्चर डायरेक्ट भी करना चाह रहा हूँ उसमें से एक पिक्चर थ्रिलर भी है। जी तो ऐसा नहीं है कि एक राइटर जो होता है वो कि नहीं यार सिर्फ कॉमेडी कर सकता है, तो कॉमेडी लिख रहा है तो सस्पेंस नहीं लिख सकता, थ्रिलर नहीं लिख सकता है। जी तो नेचर मेरा एकदम थोड़ा सा, मैं अपने आप को कूल ही रखना चाहता हूँ, पर हाँ कभी कभी थोड़ा सा। जी। तो राजन जी, जो अभी समीप जी के साथ अभी आपने की वेब सीरीज, तो अगर हाँ हाँ मैंने मैंने पढ़ा था, ये वही है ना, की बनू पूनिया का? हाँ हाँ, राइट राइट राइट। जी जी जी। तो इसके बारे में एक कब इसका पोस्ट का काम चल रहा होगा अभी तो? हाँ, पोस्ट का काम चल रहा है। जी जी समीप जी को मैंने ये सब्जेक्ट 4-5 साल पहले सुनाया था, जी तो वो जब भी मिलते थे मेरे को, या जब भी फोन पे बात करते थे कि अरे वो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट है ना, जी मैं बोला हाँ सर। तो फिर हम लोगों ने उसको पहले फिल्म करने वाले थे, फिर बाद में समीप जी ने बोला नहीं यार इसको वेब सीरीज करते हैं। जी। तो फिर उनके साथ भी काम करना एक अपना, वो भी एक अपना कूल तरीके से काम करते हैं। बड़े अच्छे अच्छा, इंसान हैं। हाँ, जी कि भाई अच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। और बहुत ही मतलब उनका जो थिंकिंग है, जी बहुत ही ह्यूमर उनका, उनको चाहिए हर जगह, और लॉजिक बहुत अच्छा ढूंढते हैं, बहुत उनके, उनको ये कि ज्यादा फिल्मी नहीं होना चाहिए। जी एक आम आदमी के इंसान में जो हो सकता है जी उसे 10% ज्यादा हो, पर वो बहुत ही फिल्मी नहीं चाह रहे थे वो। तो जी उनके साथ भी लिखने में बहुत मजा आया। जी राजन, जैसे आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी है ना, तो हमने देखा कोविड ने काफी कुछ ओपन अप किया, जैसे ओटीटी। तो आपके सामने रूबरू होने का मौका मिला हमें इस प्लेटफॉर्म खोलने पर। आपका क्या विचार है जो हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया, रूबरू इनसाइड ऑफ एन आर्टिस्ट, इसके बारे में? सर आप लोगों का सबसे अच्छा ये है कि जो लोगों, जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप लोग जो छोटे छोटे टेक्नीशियंस हैं, और बड़ों का तो हर कोई लेता है, जी तो हर एक नए आर्टिस्ट का, हर नए आर्टिस्ट जो लोग बहुत कम जानते हैं उनका भी आप लोग लेते हो, जी तो उससे लोगों को जानकारी मिलती है, सोच मिलती है। आज अ, जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो उस आदमी के बारे में भी लोगों को पता चलता है कि यार ये आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, क्योंकि 2-3 मिनट में आदमी बहुत अच्छा बोल लेता है, बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर लेता है, पर जी 1 घंटा जब आप पूरा इंटरव्यू लेते हैं, आदमी को, सामने वाले को पता चलता है कि आदमी है कैसा, जी और वो बिल्कुल कितना टैलेंट है, कितना नहीं है, बिल्कुल। तो ये उससे भी बहुत रीजन था हेल्प मिलता है। जी, यही रीजन था राजन जी, कि आर्टिस्ट को, डायरेक्टर को सब लोग अप्रोच करते हैं। तो हम जैसे हम्म सिनेमाटोग्राफर हैं, राइटर हैं, आर्ट डायरेक्टर हैं, इन लोगों का मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनता है तो सबकी मेहनत लगती है उसमें। ठीक है, स्पॉट बॉय हैं, लाइट वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो अपना लाइट मैन है, स्पॉट दादा है, ये अब हमारा कितना ख्याल रखते हैं, बहुत सारी टीम मेंबर्स होते हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो ईपी हैं, उनका मैंने कभी नहीं देखा कि उनको इंटरव्यू में बिठाया हो, उनको नहीं नहीं, लाइट सर बहुत अच्छा है। एक जी लाइट भी जरा भी ऐसे से ऐसा भी हो जाती है ना, तो जी शॉट खराब हो जाता है। जी बिल्कुल। वो लाइट मैन भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे ज्यादा मैंने देखा है सेट पे लाइट मैन और स्पॉट बॉय ही मेहनत करते हैं, जी खास करके तो लाइट मैन, क्योंकि दूसरे लोगों को लाइटिंग कर रहे हैं तो एक मौका मिलता है बैठने के लिए, जी पर लाइट मैन को तो शॉट में भी
लाइट के पास खड़े रहना है और शॉट खत्म होने के बाद भी लाइट एडजस्ट करनी। और सेट पे वो 2 घंटे पहले आते हैं और जब हाँ, शूट और बैकअप होता है तो 2 घंटे बाद ही जाते हैं। सबसे लास्ट में वो जाते हैं। जी तो जी स्पॉट वाले और लाइट वाले दो जो होते हैं वो पहले आते हैं, पहले लास्ट में जाते हैं। जी जी जी। तो राजीव जी, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन होता है हर आर्टिस्ट से, आपने भी स्ट्रगल की है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखी हैं, तो लाइफ में जब डाउन जाते हैं तो कुछ लोग सहारा लेते हैं ड्रग्स का, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि तब क्या करना चाहिए? और क्योंकि हमारे मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं, एम्बिशन उनके बड़े होते हैं लेकिन डाउन को वो झेल नहीं पाते, तो उसके बारे में पूछना चाहेंगे। सर देखिए क्या है, मैं ये समझता हूँ कि हर किसी की लाइफ में अप डाउन आता है, चाहे वो कोई भी होने दो। पर ड्रग्स है या बहुत से लोग सुसाइड सोचने की कर लेते हैं, तो जी। वो नहीं होना चाहिए। जब आप कोई चीज में इंटर्ड होते हैं तो आपको पहले से ये फैसला कर लेना है कि मैं सक्सेस भी हो सकता हूँ। अगर सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा? जी सही है। तो लोग जो है बहुत पॉजिटिव सोच के चलते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार एक बार आप नेगेटिव ही सोचो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, जी क्योंकि आपका अगर फ्रेंड सर्कल खराब है, आपका फ्रेंड सर्कल अगर ड्रग्स लेता हो तो आप उसमें जल्दी घुसोगे। आपका फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स जो होते हैं वो सही रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल। माँ बाप तो हरदम यही चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके सब लोग जो है कोई गलत रास्ते पे नहीं जाए। पर बड़े बच्चे लोग जो जब स्ट्रगल करने आते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते हैं, उठते हैं, जी तो चल यार दारू पी लेते हैं, चल ये कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हाँ चल, वो चाहते हैं कि यार हम जो कर रहे हैं वो भी सामने वाला भी करे। जी बिल्कुल तो वो चीजों में नहीं आना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि यार ये फ्रेंड्स मेरे लिए सही है कि नहीं है। जी जी। सही है। राजन जी, जैसे आपको बहुत बार फोन पे बात होती है, चाहे वो दिन के 12 बजे हो, कई बार रात के 12 बजे भी आप मीटिंग्स में रहते हैं, तो होता है कि यार अभी एक मीटिंग खत्म करके निकल रहा हूँ तो इतने बजे पहुंचूंगा। तो बड़ी भागम भाग लगी रहती है, बॉम्बे का वैसे भी माहौल ऐसा है। तो घर पे कितना टाइम दे पाते हैं? कभी घर वाले बोलते हैं कि ये मतलब आते टाइम मतलब ये ले आना बच्चों के लिए, या स्कूल की फीस दे दो, या सब्जी लेके आना, या ऐसा कुछ रहता है कभी? नहीं सर, मेरा ऐसा है कि मैं खुद ही लेके चले जाता हूँ। जी और हाँ, तो वो मेरी वाइफ जो है पूरा पूरे घर को अच्छे से संभाल के रखी हुई है। जी और एक ही बेटा है। जी तो मैं इतना इतना भी नहीं। राइटर के लिए क्या होता है कि आदमी बैठते उठते सोचता है। जी संडे को मीटिंग्स नहीं होती है, ज्यादा करके बहुत कम जी होती है संडे, जी क्योंकि मैं मीरा रोड में रहता हूँ, अंधेरी होती है, तो हफ्ते में 2 दिन सोचता हूँ कि नहीं जाऊँ। जी क्योंकि अगर सिर्फ मीटिंग की मीटिंग करूंगा तो लिखूंगा कब? जी तो फैमिली के साथ वक्त निकल जाता है। जी। पंजाब हम आते रहते हैं आप, बहुत बार देखा जी जी आपको, जी। यहाँ पे मिले भी हाँ हैं। हम जलंधर से चंडीगढ़ हम इकट्ठे गए भी थे। हाँ राजन जी के, आपके नाम भी राजन बत्रा जी के ऑफिस से चंडीगढ़ इकट्ठा गए, हम ट्रैवल हाँ। करके बहुत सारी बातें की। तो कैसा लगता है जब पंजाब आते हैं लोगों से मिलना? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे आके? तो मेरे एक दोस्त ने बोला, अरे यार तू पंजाबी पिक्चर लिखा है, उनको ना बहुत जल्दी गुस्सा आता है। जी तो मैं बोला उनका गुस्सा भी उतना ही है, प्यार भी उतना ही अच्छा है। जी तो वो पंजाब का माहौल और बॉम्बे का माहौल तो बहुत ही अलग है। जी यहाँ पर आप एक परोठा खा लो तो पेट भर जाता है, जी वहां पर 2 पराठे खा लो तो 1 घंटे के बाद भूख लग जाती। तो वो भी एक बहुत डिफरेंट है। वहां पर लोग नेचुरल जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ जी पर मशीन की तरह काम कर रहे लोग, जी मुंबई में तो। जी। सही है। तो आगे जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो कौन सा हमें देखने को मिलेगा कि ये राजन जी का ये वाली फिल्म हम देखें तो? आई थिंक जनहित में जारी अगस्त से शूटिंग चालू हो रही है, जी वो है। और समीप जी की जो वेब सीरीज है जी डैडी कुल मुंडे फुल, आधी शूटिंग हो चुकी है, कुछ 25% पिक्चर बाकी है।
वो है। और अटल जी का भी थोड़ा सा था, रुक गया था काम, अटल जी वाली बाइक क्विक का। बस अब भगवान से ये कृपा है कि बस अब फिर से लॉकडाउन ना हो और कोविड से लोगों को छुटकारा मिले। जी वो इम्पोर्टेंट है कि कोविड से छुटकारा मिले सबको, तो अब आगे सबकी लाइफ अच्छी बने। जी 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 क्योंकि अभी मार्केट में काम बहुत आने वाला है, क्योंकि ओटीटीज आ गए हैं, अभी थिएटर चालू होंगे। तो जी कितना भी करो, ठीक है, ओटीटी अपनी अपनी जगह अच्छी है, जी पर जब तक वो पिक्चर थिएटर में रिलीज नहीं होती है, फिल्म नहीं कहलाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो बॉम्बे का माहौल ठीक हो रहा है, अभी खुल रहा है वहाँ पे। हाँ, मतलब दुकानें उकानें खुलना शुरू हो गई, अभी थिएटर्स तो अभी मेरे ख्याल से होंगे। अपनी और अपनी फिर वो दुकान भी प्रोड्यूस खुलनी शुरू हो चुकी है। जी जी हाँ, पर प्रोड्यूसर तो डरता है ना सर कि पिक्चर रिलीज होगी तो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी साउथ में एक पिक्चर अभी रिलीज हुई थी लॉकडाउन से पहले, जी तो 150 करोड़ का बिजनेस किया था। जी तो वहां पर तो लोग थिएटर में घुसते हैं, क्योंकि वहां पर तो ओ, उनके एक तरह का दारू है साउथ वालों के लिए। जब तक पिक्चर थिएटर में जाके नहीं देखेंगे तो उनका एडिक्शन। काम नहीं होता, उनकी जिंदगी, एक तो लगता है कि जिंदगी अधूरी है। जी एडिक्शन। हाँ तो एक चीज और थी, मतलब साउथ का काम करने का तरीका या बॉम्बे का, पंजाब तो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा टाइम हुआ है, वहाँ पे काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। चल तो यहाँ पे भी काफी टाइम से रहा था, बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था। तो कहाँ पे ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं काम करके? सर, मैंने बम्बई में ज्यादा काम किया है। जी साउथ इंडस्ट्री एक जो है ना, वो वहां पर हीरोज का जो इम्पोर्टेंस है, मतलब जी वहां की, मैंने एक पिक्चर फ्लॉप पिक्चर थी बड़े स्टार की, जी फ्लॉप हो गई थी पिक्चर। जी और मैं जब तीसरे दिन देखने गया जी। तो ब्लैक में टिकट लेके देखी थी। क्या बात माय गॉड। तो वो वहां का जो हीरो से जो लगाव है लोगों का, है। जी तो वो यहाँ पर नहीं है, जो जी बॉलीवुड में नहीं है। जी सही कह रहे बॉलीवुड में नहीं है। जी वो हमको पहले था, अरे फैन से, अरे एक हीरो आ गया, लोग उसको देखना चाहते हैं बस। जी पर जो इज्जत है, जो साउथ के एक्टरों ने अपने फैंस के लिए जो इज्जत बनाई है, प्यार बनाया है, जी शायद वो आज के एक्टर्स लोग हमारी इंडस्ट्री में नहीं बना पा रहे, जी। तो बॉलीवुड के लोग। कोई सब्जेक्ट ऐसा जो मतलब दिल में सोचा हो कि यार इस एक्टर के साथ करना है? डायरेक्टर तो हो गया, एक्टर के लिए हाँ जैसे हर बंदा सोचता है अमिताभ बच्चन के साथ, बड़े से बड़े स्टार सलमान के साथ, तो आमिर खान हैं, तो कभी दिमाग में कि यार ये सब्जेक्ट है, मैं इस स्टार के साथ करना चाहता हूँ, ऐसा कभी मन में कुछ? नहीं सर, ऐसा मेरे को कुछ नहीं आया। मेरे को मैं अभी तो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई अच्छा एक्टर मिल जाए, जी तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है कि मैं करना चाहूंगा। पर जी हाँ, साउथ में एक एक्टर है नानी बोलकर, जी वो मैं उसके साथ एक काम करना चाहूंगा। वो बहुत अच्छे एक्टर है। जी और पता नहीं बाकी का, मेरे को ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट में कोई अच्छा आर्टिस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, जी तो मेरी स्क्रिप्ट सही होगी तो लोग पसंद करेंगे। जी जी। चलो राजन जी, काफी, कोई आपका क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नहीं है राजन जी, जैसे हम आपने मौका दिया हमें ऑनलाइन होस्ट करने का, है ना, तो ऑफलाइन होस्ट करने का मौका कब दे रहे हो? पंजाब कहने का मतलब पंजाब कब आ रहे हो हमारे पास? जी सर, मेरा कुछ जुलाई में है प्लान, जुलाई के एंड में। तो मैं आप लोगों को पहले से कॉल कर लूंगा जैसे आना होगा। जी जी जी। राजन जी, आपने काफी सारा टाइम दिया, बहुत सारी बातें की, फोन पे हमारी बहुत बार बात हुई है, बहुत लंबी बातें भी होती हैं, लेकिन इस रूबरू प्रोग्राम में आके आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। दुआ करते हैं कि सब जगह जो काम हमारी इंडस्ट्री के हैं, सब लोगों के काम चले, चाहे वो कोई सब्जी वाला है, किसी की दुकान है, किसी का बिजनेस है, हर बंदे के लिए दुआ है कि सबके काम चलें और हमारा भी काम स्टार्ट हो और हमारा मिलना जुलना पहले के जैसे हो, हम एक दूसरे को फेस टू फेस मिले, बातें करें। तो जल्दी मिलते हैं फिर इस बस
मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग वैक्सीन लगाए, जी और वैक्सीन लगाए तो ताकि जो है सरकार एक दिन ऐसा घोषित करे कि बोले भाई अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जी बस ये हमको भगवान से प्रार्थना करना है और सब जनों को यही बोलना है कि वैक्सीन लगाए, कोई डरे नहीं, भारत सरकार पर और भरोसा करे। जी वेरी जी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच राजन जी, आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया लोगों को। तो मेरा आधा काम कर दिया। जी जी, ये डॉक्टर साहब है, इनकी ड्यूटी है, इनका काम आपने कर दिया और हमारा काम अब ये कर रहे हैं। हम मिलजुल के हाथ को हाथ है ना जैसे पकड़ के आगे चल रहे हैं। भगवान करे बहुत जल्दी ये सारा जो है, जो भी महामारी है ये खत्म, अभी तो बहुत खत्म हो गई है, सरकार कर भी रही है, लोग भी कर रहे हैं, तो जल्दी ये जो सारा पहले जैसा माहौल हो जाए, हम फिर से पहले जैसे काम करें मिलजुल के। तो इसी उम्मीद के साथ ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, तो फिर जल्दी मिलते हैं। बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद, हाँ राजेश जी, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच।